Hello friends, myself Dr. Kirti Sriram Kulkarni and I am from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College Jawahar. So friends, I am very happy to welcome you all for the new semester, that is TYBSc Inorganic Chemistry semester 6. So friends, because of the corona pandemic situation, we have adopted this new method, that is blended method of teaching and learning, and now you are also very well adopted for it. So you have also completed successfully your exams, and I am very happy to explain you again with the same type of method, and I know that you will also generate your interest and you will also complete this semester also in very positive manner. Okay, so in this sixth semester again you have to learn 4 units, and out of that 4 unit I am starting with the fourth unit, that is some selected topics. Okay, so before starting this fourth unit we will have a look for our overall syllabus for the TYBSc Inorganic Chemistry, that is for semester 6. So very first unit in this semester is theories of metal and ligand bond, that is first part. Okay, then in second unit you have to learn about the same thing, that is theories of metal and ligand bond, but it will be of second part. Then your third unit will be of organometallic chemistry, and the fourth unit will be of some selected topics. So beginning with the fourth unit, that is some selected topic. So what are those selected topics? So there are 3 topics we have to cover. The first one is about metallurgy. Okay, it will be all operations regarding metallurgy and how it's working for different type of metal, that you have to learn. Then your second topic will be chemistry of group 18. So in first semester you learn about group 16 and 17. So here you have to learn about group 18. Then the next topic will be introduction to bioinorganic chemistry. So these 3 topics you have to cover in this particular chapter. So beginning with this first topic, that is metallurgy. So you know this word from your first we can say semester, that is FYBSc, and also you must have learned about it in second semester, that is SYBSc. So what is metallurgy actually? That it is very important procedure where you have to extract the metal from the minerals or from the earth. Okay, so metal is very important part of our life. So we all know that the study of inorganic chemistry consists of metals and non-metals. Okay, so here we all know that metals are very important for our day-to-day life, but it is not very easy to extract the metal from the earth. We all know that the earth contains a lot of mineral and ore, and in that mineral these metals are hidden. Okay, so you have to follow a long procedure to extract this metal from the hidden minerals. Okay, so this operation or these methods are known as metallurgy. Okay, so we all know that whenever industries are developed, our dependence on metal is increased a lot. So we use them for everything, like for construction, then for day-to-day life, also for the jewelry. Means everywhere you have to use the metals. But we all know that it is not very easy to get the metal, and we should know where they come from actually. Okay, so the biggest source of this metal is earth crust. We all know that soil, mainly we can say, it consists of the metal. So जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ का जो इनर पार्ट है, that is actual source of metal. Okay, and it is also source of many other elements. So out of these elements 70% are near about of metal. तो अर्थ क्रस्ट जो है, सॉइल के अंदर का जो पार्ट होता है एक्चुअली, वी ऑल नो दैट अर्थ क्रस्ट इज़ वेरी थिक एंड वेरी हार्ड ऑल्सो. तो उसमें हम लोगों को मेटल मिलते हैं, एंड दैट इज़ अबाउट 70%.
So aluminium is the most abundant metal of earth crust and iron comes second. तो सबसे ज़्यादा जो हमें मेटल इजीली मिलता है अर्थ क्रस्ट में वो होता है एल्यूमिनियम, और उसके बाद नंबर आता है आयरन का. एंड वी ऑल नो दैट these two metals are used in a large quantity in our day to day life. एल्यूमिनियम और आयरन दोनों हम लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं. Okay, so metal generally occur in two forms in nature, native state and combined state. Okay, तो जो मेटल है हमें दो तरीके से मिलते हैं, एक को कहते हैं नेटिव स्टेट और दूसरे को कहते हैं कंबाइंड स्टेट. तो ये क्या होता है? सो अ नेटिव मेटल इज फाउंड नेचुरली आइदर इन प्योर फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ अलॉय. ओके, तो जो मेटल हमें इजीली उसके खुद के प्योर फॉर्म में मिलता है ना, तो उसे हम कहते हैं नेटिव मेटल. या फिर अलॉय फॉर्म में, मतलब किसी और मेटल के साथ उसका कॉम्बिनेशन होता है. या फिर नोबल मेटल जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, they have less electropositive character and also very low chemical reactivity, and therefore they are not attacked easily by oxygen, moisture as well as carbon dioxide of air, and therefore they occur in the free state or in their native state, है ना. तो जो मेटल हवा के साथ, पानी के साथ एज वेल एज मतलब ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिखाते, उन्हें हम नोबल मेटल भी कहते हैं. तो ऐसे मेटल हमें नेटिव फॉर्म में मिल जाते हैं. ओके, मतलब उनको एक्सट्रैक्ट करते टाइम हमें ज़्यादा ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती. इजीली अगर हम लोगों को पहले डिटेक्ट हो गया कि यहाँ पे मेटल मिल रहा है नोबल मेटल, तो उसे हम थोड़ा इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ओके, वो भी ज़्यादा इजी नहीं होता एक्चुअली. मेटलर्जी में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, बट एज कम्पेयर टू द अदर मेटल the noble metal can be extracted little bit easily. तो उसे हम लोग कहते हैं कि they are in their native forms. Okay, but in the case of reactive metal, okay, reactive in the case they have high electropositive character, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, so they are very very reactive. Hence they occur in the combined state of compound as their oxides, carbonates, sulfides और halides, है ना. मतलब वो अपने नेचुरल फॉर्म में या प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं मिलते, बिकॉज दे आर रिएक्टिव. तो वो दूसरों के साथ इजीली रिएक्शन करते हैं. तो किस किस के साथ रिएक्शन कर सकते हैं? हवा के साथ, पानी के साथ, है ना. जो भी उनके आसपास निगेटिव पार्ट है, निगेटिव वी कैन से अनायंस है, उनके साथ वो रिएक्शन करते हैं. और रिएक्शन होने के बाद क्या बन जाता है? ऑक्साइड्स ऑफ मेटल और कार्बोनेट, सल्फाइड्स और हलाइड्स ऑफ मेटल. तो ये जो कंबाइंड फॉर्म है, कंबाइंड स्टेट ऑफ मेटल है, उसे हम क्या कहते हैं? कंबाइंड स्टेट, है. तो जो नोबल गैसेस है और नोबल मेटल है वो नेटिव फॉर्म में मिलते हैं, और जो रिएक्टिव मेटल है वो हमें कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं. ओके, सो दिस टाइप ऑफ वेरियस ऑपरेशंस दैट आर कंडक्टेड इज कॉल्ड एज मेटलर्जी. तो ये जो सारे मेटल है जो अर्थ क्रस्ट में है, उनको अर्थ क्रस्ट से सेपरेट करने से हमारे घर तक लाने के लिए, मतलब प्योरेस्ट फॉर्म में मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो भी सारी प्रोसीजर करनी पड़ती है उसे हम कहते हैं मेटलर्जी. ओके, सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मेटलर्जी, दैट ऑल मेटल्स आर एक्चुअली इन द अर्थ क्रस्ट, दे आर इन सॉइल फॉर्म, और उस सॉइल को अच्छे से एक्सट्रैक्ट करके डिफरेंट प्रोसीजर करके वेरियस ऑपरेशन वी हैव टू कैरी आउट एंड देन दे आर इन यूजफुल फॉर्म. तो ये सारे चीज़ें करने के लिए जो ऑपरेशन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेटलर्जी. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज वी विल सी व्हाट इज द मिनरल. ओके, तो ये जो मेटल है, स्पेशली द कंबाइंड स्टेट ऑफ मेटल which occur in naturally in earth crust are called as mineral. मतलब नोबल गैसेस और नोबल मेटल को छोड़ के बाकी के जो मेटल्स है वो हमें कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, है ना. कहाँ पे? अर्थ के क्रस्ट में, है ना, सॉइल के अंदर, वी कैन से डीप इन द सॉइल. तो ये जो हमें मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉइल, वी कैन से डायरेक्टली, उन्हें हम क्या कहते हैं? मिनरल. ओके,
we can say that every mineral is not suitable for the extraction of metal. मतलब क्या है कि कोई भी आप लोग सॉइल ले लो, एकदम ऊपर ऊपर का सॉइल नहीं लेना है. यू हैव टू गो डीप इन क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट, और वहाँ का सॉइल आप लोग निकाल सकते हो. तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मिनरल. उसमें अबंडेंट अमाउंट में आपको वेरियस मेटल्स मिलेंगे, लेकिन हम हर मिनरल को एज अ सोर्स ऑफ मेटल नहीं ले सकते. तो फिर किसे ले सकते हैं, तो हम लोग ले सकते हैं ओर को. सी, फर्स्ट वन इज मिनरल एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज ओर. तो ये ओर क्या होता है ना. सो द मिनरल फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड एज ओर्स, है ना. मतलब ओर क्या होते, ओर आर ऑल्सो काइंड ऑफ मिनरल, है ना. तो आप लोग ठीक से डेफिनेशन देखो कि द मिनरल्स, है ना, जो ऊपर वाला है, जिनमें से हम लोग मेटल इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओर. तो ये इकोनॉमिकली क्या है कि मानो आप लोगों ने बहुत सारी सॉइल एक्सट्रैक्ट की, लेकिन उसमें से आपको एकदम थोड़ा सा मेटल मिल रहा है ना. सो द कॉस्ट ऑफ दैट इज़ वेरी हाई. जो प्रोसीजर है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और उसमें से जो मेटल मिल रहा है उसकी कॉस्ट बहुत कम है. तो दिस इज़ नॉट यूजफुल, है ना. तो ये किसके साथ हो सकता है, आपके मिनरल के साथ हो सकता है. लेकिन ओर क्या है, ओर इज अ स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द मिनरल. मतलब जिसमें हमें पक्का ज़्यादा से ज़्यादा मेटल मिळणे ही वाला आहे. ज्याला आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो, खाण, है ना. जिथे खाण असते तिथेच आपल्याला मेटल जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये मिळतो. तर अशा पद्धतीने सगळ्याच ठिकाणी आपल्याला मेटल इकॉनॉमिकली आणि कन्व्हिनियंटली मिळेल असं नाही. पण जी खाण आहे, खाणीमध्ये जी माती असते, है ना, अर्थ क्रस्ट असतो, तिथे मात्र आपल्याला मेटल जास्तीत जास्त अमाऊंटमध्ये मिळतो. म्हणजे आपल्या प्रोसिजरची जी सगळी कॉस्ट आहे ती वजा करता आपल्याला फायदा जास्त होऊ शकतो, बिकॉज ऑफ द मेटल कॉस्ट. अँड दिस पर्टिक्युलर टाइप ऑफ मिनरल इज कॉल्ड एज ओर. तो इसका सीधा मतलब क्या है कि ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर. मतलब जो सारे मिनरल हैं उन्हें हम ओर नहीं कह सकते, बट ऑल ओर्स आर कॉल्ड एज मिनरल. लेकिन जो सारे ओर है वो मिनरल है. तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. मिनरल मतलब हर तरीके की सॉइल जिसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट में सारा मेटल होता है बीनीथ द अर्थ सरफेस. लेकिन ओवर क्या है, ओवर में से हम लोग मेटल इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में निकाल सकते हैं. मतलब क्या है, मराठीमध्ये खाण. जिथे खाण आहे तिथेच आपल्याला जास्तीत जास्त अमाऊंटमध्ये मेटल मिळतो, अँड दॅट इज कॉल्ड एज ओअर. सो फॉर अस ओअर इज वेरी वेरी इम्पॉर्टंट. ओके. सो जो अर्थ क्रस्ट है या फिर जो ओर है उसमें से अर्दी एंड द अनडिजायर्ड मटेरियल और वी कैन से इम्प्यूरिटी is removed, and that impurity along with the ore is called as gong or matrix, है ना. So the ore need to be processed and remove the impurities. Okay, तो ये जो ore हम लोग लाएंगे उसके साथ हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है. It should be processed and all impurities should be removed, and then it is taken in its finest or we can say purest form. Okay, so for this some scientific and technological procedure is required, है ना. तो ये जो सारी प्रोसीजर है आप लोग देख सकते हो कि मिट्टी कैसी होती है ना, सॉइल कैसे होता है. तो अपना जो ओर है दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ सॉइल. तो सॉइल में से एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में जो मेटल हम लोग लाते हैं, फॉर दैट वेरी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड. So the scientific and technological procedure of isolation of metal from their ore economically and conveniently is called process of metallurgy. तो ये process of metallurgy क्या है कि it is a scientific and technological procedure for isolation of metal from its ore. तो ore से हम लोग मेटल को सेपरेट करेंगे कैसे, साइंटिफिकली एंड टेक्नोलॉजिकली. ऑल्सो इट शुड बी इकोनॉमिकल एंड वेरी कन्वीनियंट ऑल्सो. तो ऐसे जो सारे प्रोसीजर है
उससे हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मच. So now the next part is type of metallurgy, है ना. So what happens actually when we want to obtain the metal in the pure state from their ore, we have to carry out various physical and chemical operations. तो ये जो फिजिकल और केमिकल ऑपरेशंस है ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? इट डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, है ना. कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट करना है उसके ऊपर ये प्रोसीजर भी डिपेंड करती है. सो दीज ऑपरेशंस आर बेस्ड अपॉन द फंडामेंटल लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, फेज रूल एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. सारी केमिस्ट्री इसमें आ गई, है ना. तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल you have to carry out different type of procedure, and depending upon that the type of metallurgy will be decided. Okay, so how the choice of metallurgical operation is decided? हम लोगों को कौन सा ऑपरेशन करना है ना मेटल एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी, रिचनेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द ओर. मतलब जो ओवर हम लोगों को मिला आहे म्हणजे जी खाण आपल्याला मिळाली त्या खाणीमधलं मटेरियल, ती माती ॲक्च्युली कशी आहे. रिचनेस म्हणजे काय की त्याच्यामध्ये किती अमाऊंटमध्ये मेटल मिळतो, है ना. बघा कसं असतं की तुम्ही खूप सारी माती खोदली आणि त्यातून थोडासाच मेटल मिळाला म्हणजे त्याच्यात रिचनेस कमी आहे. पण थोडीशी माती गाळून आपल्याला जास्तीत जास्त मेटल मिळत असेल म्हणजेच काय की त्याचा रिचनेस चांगला आहे. So depending upon the quality of ore, richness, similarly cost of transport, electricity, then relative other expenses like fuel, pollution due to the process, refining process, या सगळ्या प्रोसेस आपल्याला कन्सिडर कराव्या लागतात आणि या सगळ्या प्रोसिजर मिळून त्या ऑपरेशनची एक कॉस्ट ठरत असते, है ना. सो इट इज नॉट पॉसिबल दॅट फॉर एव्हरी टाईप ऑफ मेटल अँड फॉर एव्हरी टाईप ऑफ ओर देर इज सेम प्रोसिजर. आपल्याला तर माहितीच आहे की वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या गोष्टीची कॉस्टसुद्धा वेगवेगळी असते. अँड देअर फॉर दिस होल प्रोसिजर ऑफ मेटलर्जी डिपेंड अपॉन द नेचर अँड प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल. म्हणजे हे सगळे फॅक्टर जे आहेत फ्युएल, पोल्युशन, ट्रान्सपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ह्या सगळ्या कन्सिडर करता आणि तुमचं जे ओवर आहे त्याची क्वालिटी कन्सिडर करता प्रत्येक मेटलसाठी वेगवेगळ्या आपल्याला मेथड वापराव्या लागतात. सो डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेशन इन्वॉल्व्ड फॉर द एक्सट्रॅक्शन ऑफ मेटल इकॉनॉमिकली फ्रॉम इट्स ओवर, द मेटलर्जिकल मेथड्स आर डिवायडेड इंटू 3 टाइप्स. तर अशा पद्धतीने ह्या सगळे फॅक्टर कन्सिडर करता आपली जी मेटलर्जीची प्रोसेस आहे. आता तुम्हाला हे कळलं की मेटलर्जी म्हणजे काय. मेटलर्जी म्हणजे सायंटिफिक आणि टेक्नॉलॉजिकल मेथड टू सेपरेट मेटल फ्रॉम इट्स ओवर. बरोबर, त्या ओवरमधून किंवा मातीमधून मेटल सेपरेट करणे यालाच काय म्हणतात मेटलर्जी. तर या मेटलर्जीच्या मेन 3 टाईप आहेत. कोणकोणत्या? पायरोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोमेटलर्जी अँड हायड्रोमेटलर्जी. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन ऑल दिस फॅक्टर जे आपण आत्ता डिस्कस केले की वेगवेगळ्या मेटलची वैशिष्ट्य, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ ओर, क्वालिटी, इट्स रिचनेस, फ्युएल कॉस्ट, पोल्युशन, इलेक्ट्रिसिटी, हे सगळे फॅक्टर कन्सिडर करता वेगवेगळे मेटल हे मेनली 3 टाईपने सेपरेट करता येतात. कशातून? त्यांच्या ओवरमधून. त्यातली पहिली मेथड आहे ती म्हणजे पायरोमेटलर्जी. ओके, सो द पायरोमेटलर्जी बेसिकली डिपेंड्स ऑन हीट. खूप सारी हीट प्रोव्हाइड करावी लागते अँड इट इज मेनली यूज फॉर हेवी मेटल्स. तर पहिली जी मेथड आहे ती कशासाठी वापरतो आपण? फॉर हेवी मेटल्स लाईक कॉपर, आयर्न, झिंक अँड लीड. अशा प्रकारच्या मेटलसाठी पायरोमेटलर्जी वापरतात आणि याच्यामध्ये मेन 3 स्टेप असतात. दॅट इज कॅल्सिनेशन, रोस्टिंग अँड स्मेल्टिंग. ओके, सो कॅल्सिनेशनमध्ये काय करतात तर तुम्हाला एका सर्टन लेवलपर्यंत तुमचं जे ओवर मटेरियल आहे त्याला हीट करावं लागतं टू रिमूव्ह द volatile organic compound. Okay, then there will be second step of roasting. Here you have to use the more amount of heat. आपल्याला माहिती आहे हा शब्द आपण ऐकलेला आहे रोस्ट.
रोस्ट करणे म्हणजे व्यवस्थित भाजणे है ना. तर याच्यासाठी यू हॅव टू यूज मोर अमाऊंट ऑफ इट. अँड द थर्ड स्टेप विल बी ऑफ स्मेल्टिंग. ओके, सो हियर द मेटल ऑक्साइड्स आर रिड्यूस टू मेटल. म्हणजे जर ऑक्साईड असेल तर त्यापासून आपल्याला मेटल मिळवण्यासाठी स्मेल्टिंग ही प्रोसिजर करावी लागते. सो दीज 3 टाइप्स आर डिस्कस्ड इन पायरोमेटलर्जी. मग आता हेवी मेटल तर झाले, मग आता सेकंड टाइप काय आहे तर दॅट इज इलेक्ट्रोमेटलर्जी. सो दिस प्रोसिजर इज यूज फॉर ॲक्टिव्ह मेटल्स. ओके, आता हेवी मेटलसाठी पायरोमेटलर्जी, आणि जर ॲक्टिव्ह मेटल असतील म्हणजेच काय मोस्ट इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह मेटल्स है ना, जे ॲक्टिव्ह मेटल्स आहेत त्यांच्यासाठी इलेक्ट्रोमेटलर्जी ही प्रोसिजर वापरतात. सो दिस इज यूज फॉर मेटल्स लाईक मॅग्नेशियम, कॅल्शियम, सोडियम. ओके, सो हियर दीज मेटल्स आर मेनली इन देअर क्लोराइड्स, ऑक्साइड्स और हायड्रॉइड और हायड्रॉक्साइड फॉर्म. ओके, आणि ते फ्यूज स्टेटमध्ये असतात. आता आपल्याला माहिती आहे फ्यूज स्टेट म्हणजे काय तर सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड हे सुद्धा काय आहे आपण म्हणू शकतो की इट इज कंबाइंड स्टेट ऑफ द मेटल, राईट. अँड फ्रॉम दॅट सपोज यू वॉन्ट टू एक्स्ट्रॅक्ट सोडियम, कारण सोडियम हा मेटल आहे आपल्याला सर्वांना माहिती आहे, तो वी हॅव टू यूज द इलेक्ट्रिक करंट. म्हणजे सोडियम क्लोराइड, कुठलंही क्लोराइड, हायड्रॉक्साईड फ्यूज स्टेटमध्ये किंवा मोल्टन स्टेटमध्ये घ्यायचं आणि त्याच्यातून करंट पास करायचा, इलेक्ट्रिक करंट पास करायचा, सो दॅट यू गेट your metal in the pure form. So that is discussed in electrometallurgy. Then there is third type, that is hydrometallurgy. तर आता हायड्रोमेटलर्जी हा जो प्रकार आहे हा कोणासाठी वापरतात. इट इज मोस्टली यूज फॉर द नोबेल मेटल. म्हणजे काय जे मेटल कोणाशी जास्त रिॲक्शन करत नाहीत, नॉन रिॲक्टिव्ह असतात आणि जरा बऱ्यापैकी प्युअर फॉर्ममध्ये आपल्याला मिळतात, त्यांच्यासाठी हायड्रोमेटलर्जी ही टाइप वापरतात. सो गोल्ड और सिल्वर और प्लॅटिनम दिस टाइप ऑफ मेटल्स आर एक्स्ट्रॅक्टेड यूजिंग हायड्रोमेटलर्जी. सो हियर देर आर two steps. First is called as leaching. Okay, so you have to separate the metal from its ore using dilute acid solutions. Okay, and then you have to separate it from the ore, that is called as leaching. Then the second step can be displacement reaction. तर एक मेटल दुसऱ्या मेटलने रिप्लेस करायचा किंवा डिस्प्लेस करायचा. तर अशा प्रकारे लीचिंग आणि डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज करून हायड्रोमेटलर्जी कॅरी आउट केली जाते. ओके, सो या सगळ्या मेथड कशा आहेत किंवा त्याच्यामध्ये काय काय होतं ते आपण आपल्या नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघूया. ओके, देन वी विल डिस्कस्ड अबाउट द डिफरंट स्टेप्स ॲक्च्युली यूज्ड इन मेटलर्जी. टिल दॅट यू टेक केअर अँड स्टे सेफ. थँक यू.